ہمیں قید کر کے لایا گیا، ہمارے ہاتھ پاؤں کی سخت رسیاں کھول کر نسبتاً نرم رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ پرانی لوہے کی بیڑیاں اتار دی گئی تھیں۔ ہم ایک 10 فٹ اونچے احاطے میں تھے جس کی دیواریں ابھی نئی جوڑ کر بنائی گئی تھیں۔ اندر آنے کا صرف ایک ہی محرابی دروازہ تھا جہاں سے ہمیں لایا گیا۔ فرانسیسی سپاہیوں نے ہمیں سامنے پتھریلی دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ دیوار میں ایک فٹ کے فاصلے پر لوہے کے کنڈے نصب تھے، اور ایک اور رسی سے ہمیں ان کنڈوں کے ساتھ کس کر باندھ دیا گیا۔ چاروں مسلح سپاہی کچھ فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ رات بالکل خاموش اور پراسرار تھی۔ الجزائری نوجوانوں میں جوش تھا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں بے وجہ پھنسنے کی وجہ سے شدید خوفزدہ تھا۔ اسی اثنا میں ایک وردی پہنا فرانسیسی فوجی افسر احاطے میں داخل ہوا، اور اس کے ہاتھ میں ایک سفید رومال تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس رومال کی ایک جنبش ہمارے سینے گولیوں سے چھلنی کرنے کا اشارہ ہوگی۔ میں خوف سے پتھر کا ہو چکا تھا، اور پھٹی آنکھوں سے میں سامنے کھڑے رائفل بردار مسلح سپاہیوں کو گھور رہا تھا۔ افسر کے آتے ہی گارڈ نے اسے سلیوٹ کیا، اور پھر وہ افسر ہمارے سامنے کوئی 15 سے 20 فٹ کے فاصلے پر ایک قطار میں کھڑے ہو گئے۔ خوش قسمتی سے ابھی تک انہوں نے رائفلوں سے ہمارا نشانہ نہیں باندھا تھا۔ فرانسیسی افسر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا، بس اب موت ہم سے صرف 15 فٹ کے فاصلے پر منڈلا رہی تھی۔ پھر اچانک ایک ایسا معجزہ رونما ہوا جس کی مجھے بالکل توقع نہیں تھی۔ جس دیوار کے ساتھ ہمیں کھڑا کیا گیا تھا، اس کے اوپر سے ایک برین گن کا بھرپور برسٹ فائر ہوا۔ گولیوں کی بوچھاڑ براہ راست فائرنگ اسکواڈ پر پڑی، اور دیکھتے ہی دیکھتے چاروں سپاہی خاک و خون میں تڑپنے لگے۔ دوسرا برسٹ اس فرانسیسی افسر پر پڑا جو تیزی سے اپنا پستول نکالنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر وہ بھی وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ہم نے حیرت زدہ ہو کر اوپر دیکھا، دیوار کے اوپر سے کسی نے نیچے صحن میں چھلانگ لگا دی۔ یہ ایک دراز قد نوجوان تھا جس نے افریقی شکاریوں جیسا لباس پہن رکھا تھا، اور احاطے کے نیم اندھیرے میں اسے پہچان نہ سکا۔ جب وہ دوڑ کر ہمارے قریب آیا اور ہماری رسیاں کھولنے لگا، تو میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ سوانا تھا، وہی نوجوان جس نے افریقہ کے جنگل سے نکلتے وقت میرے لیے اونٹ کا بندوبست کیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ الجزائری حریت پسند سمجھے کہ یہ مراکش کی تحریک مزاحمت کا کوئی مجاہد ہے۔ جب سوانا میری رسیاں کھولنے لگا تو وہ آہستہ سے بولا، تم نے میری برسوں کی پیاس بجھائی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصیبت میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں؟ میں نے خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے موت کے منہ سے بچا لیا تھا۔ سوانا نے اپنی شکاری بش شرٹ کی جیب میں سے ایک ریوالور نکال کر مجھے دیا اور کہا، جلدی سے میرے پیچھے آؤ۔ وہ احاطے کے محرابی دروازے سے نکل کر ہمیں ایک نیم روشن، سنسان راہداری میں لے آیا۔ ہم اس کے پیچھے لگ بھگ دوڑ رہے تھے، ایسا لگتا تھا کہ اسے اس جیل کے تمام خفیہ راستوں کا علم ہے۔ راہداری ختم ہوئی تو آگے ایک سیڑھی آ گئی، سیڑھیاں چڑھ کر ہم ایک گول سوراخ نما دروازے سے جیل کی 4 دیواری کے باہر نکل آئے۔ نیچے تاریک ساحل پر سمندری لہریں چھوٹی چھوٹی چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں۔ سوانا ہمیں خاموشی سے چٹانوں کے پیچھے لے آیا، اور یہاں اندھیرے میں ایک چٹان کی اوٹ میں ایک مؤثر لانچ کھڑی تھی۔ جو ہی ہم موٹر لانچ میں سوار ہوئے، سوانا نے اسے سٹارٹ کیا، گھمایا اور لانچ تیزی سے سمندر کی موجوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ہم سروں کو نیچے کیے تختوں کی اوٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور لانچ جیسے ہوا میں اڑ رہی تھی۔ سوانا مہارت سے لانچ کو کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ساحل کی چٹانیں اور جیل خانے کی روشنیاں نظروں سے غائب ہو گئیں۔ اب ہم کھلے سمندر میں تھے اور لانچ اتنی تیز چل رہی تھی کہ ہمیں بیٹھے رہنا پڑا۔ ایسا لگتا تھا کہ اگر ہم اٹھے تو ہوا کے طوفانی تھپیڑے ہمیں تنکوں کی طرح اپنے ساتھ اڑا کر لے جائیں گے۔ وقت کا احساس بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ نہ جانے کب تک میرا پر اصرار دوست سوانا لانچ کو سمندر میں چلاتا رہا، پھر ہمیں اپنی بائیں جانب دور ساحل کی روشنیاں نظر آ گئیں۔
लॉन्च की रफ्तार अब हल्की हो गई। सलाम और करीम उठकर सवाना के पास गए और मैं भी उनके साथ था। उन्होंने सवाना से पूछा कि ये किस बंदरगाह की रोशनियां हैं। सवाना ने मुस्कुराकर कहा, तुम लोग अपने वतन की रोशनियों को नहीं पहचानते। ये अलजायर की बंदरगाह, अल्जियर्स की रोशनियां हैं। दोनों हुर्रियत पसंद एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतने मुख्तसर वक्त में उन्होंने सैकड़ों मील का समंदरी सफ़र तय कर लिया है। मैं समझ गया कि ये सवाना की मावराई रफ्तार और ताकत का नतीजा है। तब उन्होंने सवाना से पूछा कि क्या तुम्हारा ताल्लुक मराकश के हुर्रियत पसंद मुज़ाहमती ग्रुप से है। सवाना ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुम यही समझ लो। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मुजाहिद करीम ने सवाना को खबरदार किया कि अल्जियर्स की बंदरगाह पर भी फ्रांसीसी पुलिस और फौज उनकी तलाश में होंगी, मगर सवाना इत्मीनान से बोला, मैं जानता हूँ, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें साहिल पर एक ऐसी जगह छोड़ूंगा जहाँ तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। सवाना ने हमें अल्जियर्स के साहिल से दूर, शुमाल की तरफ एक महफूज और खामोश मकाम पर उतारा। अपने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए उसने मुझसे हाथ मिलाया और आहिस्ता से कहा, फिर मिलेंगे दोस्त। वो सलाम और करीम से कोई बात किए बगैर लॉन्च स्टार्ट करके समंदर की तरफ रवाना हो गया। अब मैं वापस मराकश नहीं जा सकता था, क्योंकि पुलिस के रिकॉर्ड में मेरा नाम एक हुर्रियत पसंद मगरूर के तौर पर दर्ज हो चुका था। सलाम और करीम को इस सूरत-ए-हाल का एहसास था, और उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा कि मैं उनके साथ चलूं, वो मेरी रहाइश और मुलाजमत का इंतज़ाम कर देंगे। मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था, लिहाजा मैं उनके साथ चल पड़ा। रातों रात वो शहर से कुछ मील दूर एक छोटे से गांव में पहुंचे। उसके छोटे छोटे सफ़ेद मकानों के दरमियान खजूर के दरख्त तारों की धीमी रोशनी में किसी ख्वाब का मंजर पेश कर रहे थे। गांव के बाहर एक कच्ची चार दीवारी के अंदर बहुत से दरख्त उगे हुए थे और अहाते का दरवाज़ा बंद था, चुनाचे हम दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुए। ये अनारों का एक छोटा सा बाग था, जिसके किनारे पर 2-3 कोठरियां बनी थीं और एक बरामदा था। बरामदे में एक आदमी सो रहा था। सलाम और करीम ने उसे जगाया और आपस में कुछ बात की। उस आदमी ने जल्दी से एक कोठरी खोल दी। उसके अंदर फर्श पर एक पुराना कालीन बिछा था और हम वहीं पड़ गए। जब मेरी आंख खुली तो दिन काफ़ी निकल चुका था। रातों रात ही दोनों अलजायरी मुजाहिद मुझे इस मकान के मालिक और हुर्रियत पसंदों के हमदर्द अब्बू नासिर के हवाले करके ना मालूम मकाम की तरफ निकल गए थे। अब्बू नासिर की उम्र 50 के करीब थी, चेहरा बारोब और आवाज़ भारी थी। वो एक शफीक और खुश मिजाज अलजायरी बुजुर्ग था। वो मेरे साथ बड़ी शफकत से पेश आया, क्योंकि सलाम और करीम उसे सब कुछ समझा गए थे। अब्बू नासिर एक बड़े पुरजोश मुजाहिद थे और उनका एक बेटा जंगे आज़ादी में शहीद हो चुका था। अब उनकी औलाद में सिर्फ उनकी बेटी नासिरा ही बाकी थी। ये जवान अलजायरी लड़की भी अपने दिल में इस्लाम और अलजायर की आज़ादी का गहरा जज्बा रखती थी। उनका बेटा शहीद होने के बाद फ्रांसीसी पुलिस ने अब्बू नासिर को भी पकड़ा था, मगर सबूत न मिलने पर रिहा कर दिया। हकीकत ये थी कि अब्बू नासिर ज़ेरे ज़मीन काम कर रहे थे और उनकी बेटी भी इस जिद्दोजहद में उनके साथ शरीक थी। मेरा इरादा था कि मैं कुछ रोज़ यहाँ रहकर मिस्र की तरफ निकल जाऊँगा, मगर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि मेरा सारा प्रोग्राम धरा का धरा रह गया। अब्बू नासिर मुज़ाहमती तहरीक के बड़े सरगर्म कारकुन थे और उनकी तमाम सरगर्मियाँ ज़ेरे ज़मीन थीं। मैंने शहर में उनके छोटे से स्टोर पर काम करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी हुक्काम को मुखबिरों ने इत्तिला दे दी थी कि मुजाहिद रातों को अब्बू नासिर के यहाँ ठहरते हैं और यहाँ से असलहा लेकर अपने मिशन पर रवाना होते हैं। एक दिन की बात है, अब्बू नासिर किसी काम से दूसरे शहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मैं और नासिरा थे। मैं रात को स्टोर बंद करके आया तो नासिरा खाना पका रही थी। इशा की नमाज के बाद हमने खाना खाया। नासिरा मुझसे मेरे वतन और घर वालों के बारे में बातें सुनती रही और फिर थोड़ी देर बाद वो अपने कमरे में सोने के लिए चली गई।
मैं साथ वाली कोठरी में कालीन पर सो जाता था, मगर उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। चांद निकला हुआ था और खिड़की से सहराई नखलिस्तान का मंजर बड़ा दिलकश लग रहा था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था, अभी मैं गुनूदगी के आलम में ही था कि बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक कर उठ बैठा और मैंने बत्ती बुझा दी थी। मैंने धीमी आवाज में पूछा, कौन? उसके साथ ही धमाके से दरवाजा टूट गया और 6-7 आदमी अंदर घुस आए। मैं उठने भी ना पाया था कि मुझे वहीं दबोच लिया गया और घसीटते हुए बाहर ले गए। ये फ्रांसीसी पुलिस के आदमी थे। उन्होंने नासिरा के कमरे का दरवाज़ा भी तोड़ दिया और अंदर घुस गए, और थोड़ी ही देर में वो नासिरा को भी घसीटते हुए बाहर ला रहे थे। नासिरा एक दिलेर मुजाहिदा थी और उसके पास एक छोटा पिस्तौल मौजूद था। उसने फौरन फायर कर दिया। इससे पहले कि वो दूसरा फायर करती, एक आदमी ने उसकी गर्दन पर जोर से मुक्का मारा और पिस्तौल छीन लिया। चांदनी रात में मुझे पुलिस एहलकारों की नीली वर्दियां साफ नजर आ रही थीं। इनमें फ्रांसीसी सिपाही भी थे और मकामी अलजायरी पुलिस के अहलकार भी शामिल थे। कुछ फासले पर एक फौजी ट्रक खड़ा था। हमें धक्का देकर इसमें डाला गया और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। नासिरा गर्दन पर ज़र्ब लगने की वजह से अभी तक नीम बेहोशी के आलम में थी। उनके नज़दीक में भी एक हुर्रियत पसंद था, और वैसे भी अब मैं उनके साथ था। ट्रक एक नामालूम सिमत की तरफ रवाना हो गया। ट्रक के अंदर ही हमारे हाथ पीछे बांध दिए गए थे और 4 मुसल्लाह सिपाही राइफलें ताने हमारे सामने बैठे थे। ट्रक काफ़ी देर तक चलता रहा और कई मोड़ काटे। जब उसकी रफ्तार हल्की हुई और एक चक्कर काट कर रुका, तो हमें नीचे उतारा गया। नासिरा अब अपने हवास में आ चुकी थी। चांदनी रात में हमने देखा कि फासले पर बत्तियां जल रही हैं, और हमें जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि ये कोई फौजी एयरपोर्ट है। वहाँ कई फौजी गाड़ियाँ खड़ी थीं और सामने गेट पर एक गार्ड पहरा दे रहा था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और खामोश रहे। मुसल्लाह गार्ड ने हमें घेरे में ले रखा था। फिर वो हमें तेज तेज चलाते हुए एक रनवे पर ले आए, जहां एक बहुत बड़ा भूरे रंग का फौजी तैयारा खड़ा था। चांदनी में उस पर लिखा हुआ नंबर साफ नजर आ रहा था। हमें तैयारे में धकेलने के बाद दरवाज़ा बंद करके सीढ़ी हटा दी गई। ये कोई ट्रांसपोर्ट तैयारा था और शायद सिर्फ हमारा ही इंतज़ार कर रहा था। इंजन स्टार्ट हुए और तैयारा रनवे पर दौड़ने लगा, और फिर वो टेक ऑफ कर गया। तैयारे के अंदर सामान के क्रेट लदे हुए थे और मुझे फर्श पर ही बिठा दिया गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग हमें कहाँ ले जा रहे हैं, और हमें आपस में बात करने की भी इजाज़त नहीं थी। ये एक लंबी परवाज़ थी। तैयारे की गोल खिड़कियों से आसमान की हल्की नीली रोशनी जर्द चांदनी में मद्गम हो रही थी कि तैयारा नीचे उतरने लगा। मुझे इल्म नहीं था कि ये कौन सा एयरपोर्ट है, और फिर जहाज़ के उतरने के बाद जहाज़ से निकालकर हमें फौजी ट्रक में बंद कर दिया गया। तैयारे से ट्रक तक जाते हुए रोशनियों से ये ज़रूर अंदाज़ा हुआ कि ये कोई बड़ा शहर है। जंग ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए ब्लैक आउट का कोई सवाल ही नहीं था। काफ़ी देर तक चलने के बाद ट्रक एक जगह रुका, और फिर एक बड़े गेट के खुलने की आवाज़ आई। ट्रक किसी अहाते में आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा और फिर रुक गया। बाहर निकले तो हमने देखा कि हम गुंबद नुमा मखरूती मीनारों वाले किसी पुराने यूरोपीय किले के अहाते में हैं। अब दिन की रोशनी हर तरफ फैल चुकी थी, और यहाँ अलजायर के मुकाबले में शदीद सर्दी थी, जिससे जाहिर था कि ये यूरोप का कोई मुल्क है। चूँकि अलजायर पर फ्रांस का तसल्लुत था, लिहाजा ये फ्रांस ही हो सकता था। एक जगह नासिरा को मुझसे अलग कर दिया गया, और मुझे दूसरी राहदारी के कोने वाली कोठरी में बंद करके बाहर ताला लगा दिया गया। कोठरी किले के तहखाने में थी, जिसमें कोई रोशनदान भी नहीं था। बाहर राहदारी में जलने वाली धीमी सी रोशनी अंदर आ रही थी। कोने में फर्श से 2 फीट ऊंचा एक चबूतरा बना था, जिस पर 2 कंबल रखे थे। मैं सर्दी से ठिठुर रहा था, लिहाजा जल्दी से कंबलों में सिमट कर बैठ गया। मेरी नींद बिल्कुल गायब थी,
और मैं सोच रहा था कि तकदीर मुझे कहां से कहां ले आई है। आगे क्या होने वाला था मुझे कोई खबर नहीं थी, मगर मुझे नासिरा का ख्याल आ रहा था कि ना जाने उस पर क्या गुजर रही होगी। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी कि ये लोग हमें फ्रांस क्यों ले आए हैं। अगर पूछगछ करनी थी तो वो अलजायर में भी कर सकते थे, और अगर मारना होता तो वो गिरफ्तारी के वक्त ही ये काम कर सकते थे। बहरहाल मेरे सामने सबसे बड़ा मसला वहाँ से फरार होना था। मुझे अपने मावराई दोस्त सवाना का ख्याल आया, लेकिन ये हकीकत भी वाज़ेह थी कि सवाना सिर्फ तभी मेरी मदद को आता था जब जिंदगी और मौत का संगीन मसला दरपेश हो। मैंने अपनी हिम्मत और खुदा की रहमत पर भरोसा किया। फरार से पहले मैं ये मालूम करना चाहता था कि नासिरा को कहाँ कैद रखा गया है, क्योंकि उसे भी निकालना मेरा फर्ज था। कोठरी में फरार की कोई सूरत बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही थी। मुझे याद था कि अलजायर में हम अखबारों में ऐसी खबरें पढ़ते थे कि खुद फ्रांस में एक ऐसा तबका मौजूद है जो अलजायर पर फ्रांस का नाजायज़ तसल्लुत ख़त्म करवाना चाहता है और मुसलमानों को हक़ खुद इरादियत देने के हक़ में है। इनमें मशहूर फ़लसफ़ी और अदीब या पाल सारतर भी शामिल था। मुझे इस पुराने फ्रांसीसी किले में कैद हुए कई दिन गुजर चुके थे। एक रात एक दूसरा आदमी मेरे लिए प्याज का सूप लेकर आया। उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी थी, सर पर ओनी टोपी और पुराना गरम कोट पहन रखा था। सूप का मग मेरे पास रखकर वो दरवाजे की सलाखों के करीब गया, राहदारी में एक नज़र डाली और फिर मेरे करीब आकर धीमी आवाज़ में पूछा, तुम फ्रेंच जानते हो? मैंने जवाब दिया, थोड़ी थोड़ी जानता हूँ। वो बोला, सुनो, कल शाम को तुम्हें डेवलस आइलैंड ले जाने के लिए यहाँ से निकाला जाएगा। फिर उस आदमी ने मुझे सारा मंसूबा समझा दिया। वो अलजायर की आज़ादी का पुरजोश हामी एक फ्रांसीसी था। जब वो चला गया तो मुझे होश आया, क्योंकि उस आदमी ने नासिरा के बारे में लाइल्मी का इजहार किया था। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।